So what I'm trying to tell you is, now coming back to painkillers, if somebody take painkillers now and then, here and then, and if the kidney is okay, he may not have a problem. एंड सर ऑल्सो हम जब क्रेटिनाइन के बारे में देखते हैं अपनी ब्लड रिपोर्ट्स में, यूजुअली पीपल गेट वरिड हाई क्रेटिनाइन है, तो क्रेटिनाइन बढ़ने का क्या कारण रहता है? एंड सर किडनी स्टोन्स के लिए बोलते हैं कि जब किडनी स्टोन्स हो जाते हैं तब भी आपको पानी ज़्यादा लेना चाहिए, और आजकल ये भी प्रोपोगेट किया जाता है कि बियर लेनी चाहिए. सो हाउ रेलेवेंट इज़ दैट? डायलिसिस के बारे में बार बार बात आती है, तो यहाँ मैं 3-4 बात बताना चाहूँगा. एक तो यह है कि डायलिसिस अगर स्टार्ट हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है 100%. We have lot of medical tourism from international. We are mostly getting patients from Middle East and Africa. Yes. And let me tell you that India is a very good destination. You should promote it from all India. The reason, the benefits are multifold. And kidney disease are often called silent diseases because, like any other disease, there are certain symptoms that we can see. When we hear the term kidneys, we usually think of urine or dialysis, but kidneys do much more than that. They are a vital component of our body. And today, with us, we have Dr. Sunil Prakash on our channel Med Talks, and he will be breaking common myths and misunderstandings around kidney and kidney health. We are thrilled to have you here, sir. Yeah, the pleasure is mine, because I believe that through media like these, we can reach to many people and break away the myths which surround and lack of information. So, as you said, kidneys are not only responsible for throwing out the waste products, Yes. that is their primary function. Whatever we eat and the cells that die in our body produce the waste products which the kidneys throw out. The waste products leave the body either through stool, but all the nitrogen of these cells can only go out through our bodies by kidneys. So they throw out all the waste products of nitrogen like urea, creatinine, guanidines, indoles, etc. But besides that, a very important function is to maintain your milieu interior. Like from Okay. your outside, we clean our skin, put lipstick, Yes. whatever. Yes. But from inside, the kidney does all the cleaning, removes the acids, removes the toxins, and more importantly, it makes blood for the body. It produces a hormone called erythropoietin, Okay. which goes on the bones. वो bones पे act करता है and makes the bone marrow make cells, RBC, red cells. Okay. सो अगर किडनी काम नहीं करेंगी तो पेशेंट में ब्लड नहीं बनेगा, वो एनीमिक हो जाएगा. नंबर 3, द किडनी मेक्स एक्टिव विटामिन डी, एंड दिस विटामिन डी एक्ट्स ऑन द बोन्स, जॉइंट्स. You know, vitamin D is a very important hormone. उसका नाम vitamin है, but it's a very important hormone. Hormone, yes. Important for bone strength, energy, and all those things. So kidney helps there also. So it has multifaceted job to do. Yes. Apart from just Yeah, excretion of Excretion acid, of protein, acids, salt, yes. water, and all that's that. what we learn in our biology books. Absolutely. That it's its premier function to maintain your milieu interior. Yes. Milieu interior means clean from inside. We can only clean ourselves from outside. Yes. But this whole body from inside, every cell of the body depends upon kidney for the Kidney. cleanup act. So it's the great cleaners. The kidneys are great cleaners from inside. And kidney disease are often called silent diseases because, like any other disease, there are certain symptoms that we can see with any other health issue. But with kidney, there are no early symptoms. So why is that? Why don't people experience any early symptoms when it comes to, malfunctioning of kidneys? I tell you, it's a very important question, because that explains the bane of the kidney patient. If you have pain in the chest, whether it's a heart attack or not, but you will seek attention. Yes. At least you get a ECG done or go to Yes. a doctor and we exclude it, Yes. right? Kidney has no such thing. Ironically, when there is a pain in the kidney, the problem is of less magnitude. For example, if there is a stone in the kidney or some infection in the kidney or little block in the kidney, it will pain. It'll take care of that. You'll get the stone removed or whatever. That is never serious. This is the irony of kidney diseases. That it's not serious. Not serious. When a Okay. kidney pains, it's due to stone or some infection. You'll get attention and you'll take care of that. Sometimes the stone may lie for years altogether, but not threaten life. The threatening diseases of the kidney are painless. That is the problem. So I will allude back to your question. So the kidney will call attention by raising blood pressure. Okay. So I tell you, any young person like you, if he or she has high blood pressure, he should immediately go for a kidney and a blood pressure checkup.
more often than not that high blood pressure is a sign from a kidney which is in really big trouble or going to go from bad to worse. Another important symptom could be low hemoglobin in your body. Because Okay. you remember I told you kidney makes a hormone called Hormones. erythropoietin Yes, and that yes. makes RBC and RBCs, blood. yes. So if the kidney is not functioning well, the erythropoietin will not be made and the blood formation will be reduced. Hence affecting the hemoglobin as well. Yeah. Okay. So they are the important early symptoms. And sometimes young people cannot raise their family. Everything is good, hunky dory with the woman and man, and there are no uh, issues, hormonal issues. They do a regular checkup. All the male hormones, female hormones are okay, genitals are okay, but still they cannot procreate. The kidney could be going bad. Okay. There are many other It's a symptoms lesser also. known fact. Yeah, these are less known No facts, facts, less like, well understood. yes. But in nutshell, blood pressure is the most important thing in a young person. If you have to write it in one line, Okay. high blood pressure in a young person, you see, Swikriti, blood pressure is a disease of aged. If somebody gets a high blood pressure at 60, we are not worried. It's aging. It's aging. But if somebody gets a blood pressure at 20, it's big ticket problem. Kidney. It's a bit like. Okay. And also, sir, earlier you mentioned that if there's a kidney stone, there are certain pains, right? And painkillers are very easily available to common man. So how do you think those painkillers affect the kidney health? Yeah. So Because it's without prescription. Everybody know common absolutely. I think, painkillers, it's yes. again a great question. You see, you too have to understand the analogy is something like Mahabharat ka Chakravyuh. It just came to my mind. You know Abhimanyu? Yes. He was killed in Killed. Chakravyuh. He Chakravyuh. was He not was- killed by one warrior. 7 warriors Warriors. had to घेराव him, घेर के उसको मारा. हाँ 7 जी, times. बिल्कुल. Kidney अभिमन्यु है, एक से नहीं मरती. So what I'm trying to tell you is now coming back to painkillers. If somebody take painkillers now and then, here and then, and if the kidney is okay, he may not have a problem. Kidney बहुत robust organ है. एक उससे नहीं उसको डैमेज होता है. Just like I am reminded of analogy in Mahabharat. अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने घेर के मारा था. हाँ जी. Similarly in kidney, Yes. now painkiller by itself if taken once or twice or for a short time will not affect. Okay. But imagine a condition somebody has diabetes. Okay. एक दुश्मन डायबिटीज हाँ आ जी। गया, थोड़ी एज हो गई, फिर उनको ब्लड प्रेशर भी BP हो जाता है, हाँ तीसरा जी, हो गया. हाँ जी. Many a time they have other problems, किडनी की कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई ये सब है, और कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स चल रही हैं. नाउ सडनली दे हैव पेन इन द जॉइंट्स, लेट अस से एल्डरली आदमी है, लोगों को नीज में पेन होता हाँ रहता जी, हाँ है, जी. एंड दे टेक अ पेन किलर. This even short course of painkiller in patients who are taking blood pressure medicine like telmisartan and all may create havoc. क्योंकि किडनी का एक इंटरनल पार्ट होता है, वहाँ ब्लड सप्लाई नॉर्मली बहुत कम होता है. वो पार्ट सडनली उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाता है और किडनी डैमेज हो जाती है. तो जस्ट एन एनालॉजी, प्रोलॉन्ग पेन किलर से किडनी डैमेज हो सकती है. और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं. रीज़न ये है कि जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं उनको बॉडी के बाहर का रास्ता किडनी से ही मिलता है. तो किडनी में वो सारी दवाइयाँ कॉन्सेंट्रेट होकर बाहर निकलती हैं. तो अगर किसी की वीक किडनी है, वो एजिड है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, दे विल हैव अ हायर प्रोपेंसिटी टू गेट डैमेज फ्रॉम दी पेन किलर्स और एनी अदर मेडिसिन. ओके, आई गेट दैट. एंड सर ऑल्सो हम जब क्रेटिनाइन के बारे में देखते हैं अपनी ब्लड रिपोर्ट्स में, यूजुअली पीपल गेट वरीड हाई क्रेटिनाइन है. तो क्रेटिनाइन बढ़ने का क्या कारण रहता है बॉडी में? हाँ, यू सी क्रिएटिनिन जो है एक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का. जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं, यस. जब इनके सेल्स मरते हैं तो क्रिएटिन रिलीज करते हैं. और क्रिएटिन अदर सोर्सेज से भी आ सकता है, बट मोस्टली मसल सेल से आता है और डेली प्रोडक्शन में हमारी बॉडी के ब्लड में आता है. बट अगर किडनी नॉर्मल है तो और टॉक्सिन्स की तरह वो इनको भी बाहर निकाल देती है. क्रिएटिनिन बाय इटसेल्फ इज नॉट टॉक्सिक. ओके. क्रिएटिन आपको डैमेज नहीं करेगा. ओके. अब जब किडनी डैमेज हो गई तो ये किडनी को बॉडी से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया या चोक हो गया, रास्ता नैरो हो गया, लेटेस्ट से ट्रैफिक जैम जैसे हो जाता है. तो क्रिएटिन बॉडी में कलेक्ट होने लगेगा, ब्लड लेवल में बढ़ने लगेगा. तो ये एक मार्कर है कि किडनी आपकी काम नहीं कर रही. नॉर्मल क्रिएटिन 1 से कम होता है, विमेन में और भी कम होता है. तो अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर दे या वीक होती जा रही है, उसकी बॉडी में ये एक्यूमुलेट होने लगेगा. तो उसे पता लग जाता है किडनी डैमेज बढ़ रही है.
और Sir, कई बारी क्रिएटिन yes. जो है हेल्थ में भी बढ़ सकता है, किडनी नॉर्मल हो तब भी बढ़ तब सकता भी बढ़ सकता है। सो यूजुअली लोग कैल्शियम खाना छोड़ देते हैं जब वो देखते हैं कि ये वाली रिपोर्ट हमारी गड़बड़ आ रही है किडनी रिलेटेड। तो कैल्शियम का क्या लिंक है? है। कैल्शियम तो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं किडनी डिजीजेज में, क्योंकि किडनी डिजीज में बोन्स वीक होने लगती हैं। क्योंकि किडनी जब खराब होने लगती है तो बॉडी का एसिड्स किडनी में रहता है, हाँ जी। वो एसिड्स बोन में जाता है और उनको डिसॉल्व करना शुरू कर देता है ओके। स्लोली स्लोली। वहाँ से कैल्शियम निकलता है तो बोन्स में कैल्शियम कम हो जाता है। तो नॉर्मली हम चाहते हैं कि कैल्शियम दें। हाँ, सर्टेन कंडीशंस हैं जैसे स्टोन डिजीजेज हैं। हाँ जी, आई जब थिंक आप स्टोन उसको होता है। एल्यूड कर रहे हाँ थे कि जी। अगर स्टोन डिजीजेज हैं और उसमें लोग कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू वो भी एक रॉन्ग नोशन है। ओके। ज़्यादातर स्टोन डिजीजेज में कैल्शियम को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए। ओके। उसका रीज़न क्या है? कैल्शियम बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए, कैल्शियम और ऑक्सलेट। जैसे प्लस माइनस होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वैसे कैल्शियम और ऑक्सलेट चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तब कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बनता है, जो स्टोन का बेसिस है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। तो जब बॉडी में ऑक्सलेट जाएंगे ज़्यादा हाँ जी। तो स्टोन बनेंगे। अब आप अगर कैल्शियम नहीं खाओगे तो ये कैल्शियम पेट में उस ऑक्सलेट को जो डाइट में होता है बाउंड कर लेता है अच्छा। और स्टूल में निकल जाता है। ओके। नौ अगर आप कैल्शियम नहीं खा रहे तो ये सारा ऑक्सलेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और फिर किडनी में जाएगा, निकलने के लिए वहाँ जम पास जाएगा। आउट नहीं होगा। तो स्टोन्स में कैल्शियम बंद नहीं करना चाहिए, रादर खाने के साथ खाना चाहिए कैल्शियम को। तो जो डाइट का ऑक्सलेट है वो इसको बाइंड करके स्टूल में निकाल दे। ओके। तो इट्स अ मिथ आई वुड से। Okay. हाँ, एक्सेस कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए स्टोन। ओके, नोट। एंड सो ऑल्सो हम ये ऑफ द कैमरा भी डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द जिमिंग एंड जिम प्रोटीन्स एंड जिम सप्लीमेंट्स जिनकी हम बात करते हैं। हाउ डू दे इफेक्ट किडनी? बिकॉज आजकल देयर आर लॉट ऑफ रील्स ऑन सोशल मीडिया हु आर प्रोपोगेटिंग दैट वी शुड स्टॉप टेकिंग दैट all these kind of whey proteins that are there available in the market. So how do you think they affect our kidneys? ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, इसका वन साइडेड करेक्ट आंसर नहीं होगा। Okay. सो आई वुड से कि अगर आप जिम प्रोटीन्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। Okay. एक तो अंडर सुपरविजन खाइए। ठीक है। नॉट नेसेसरीली जो आपका ट्रेनर है जिम में वो आपको बॉक्स ला के दे रहा है, या ही मे नॉट बी एन अथॉरिटी। यू Yes. शुड गो टू अ डाइटिशियन और अ डाइटरी काउंसलर, नंबर 1। नंबर 2, हाउ कैन यू बी श्योर कि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है? उसके कॉन्सेंट्रेशन कितना है? प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वे प्रोटीन्स हैं, क्रिएटिन है, उनका रेशो ठीक होना चाहिए। अगर रेशो गड़बड़ है तो गड़बड़ी होगी। कई बड़ी अडल्ट्रेंट्स होते हैं प्रोटीन के साथ, अगर अडल्ट्रेंट चले गए तो वो भी किडनी को डैमेज करेंगे। चौथा क्या है कि इमेजिन करिए एक आदमी बहुत हैवी इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, Okay. तो उसकी बॉडी में सडनली मसल के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मली भी आते हैं लेकिन उसकी बॉडी में ज़्यादा आएंगे उस वक्त, और वो ब्लड में जाएंगे, किडनी में जाएंगे, और इन द सेम टाइम वो वाटर इनटेक भी कम कर रहा है या वट तो वो और कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। ऊपर से वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी ले रहा है तो वो भी वहाँ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स ये इंटरप्ले है। जिम नेफ्रोपैथी कहते हैं इसको हम इन शॉर्ट। नेफ्रोपैथी मीन्स किडनी डिजीज, जिम मीन्स जिम की वजह से। तो ये सब में नहीं होगी। तो आई डोंट वांट टू गिव अ स्टैट्यूटरी वार्निंग लाइक सिगरेट सबको नुकसान करेगी। जिम नेफ्रोपैथी मीन्स सबको प्रोटीन प्रोडक्ट नुकसान नहीं करेंगे, बट दे शुड बी वेरी केयरफुल। एक्सेस प्रोटीन अगर लेंगे तो किडनी का लोड बढ़ाएंगे वो। यहाँ भी दो बातें होंगी, अगर उनकी बिल्कुल हेल्दी किडनीज है तो शायद पता ना लगे, लेकिन कई दफ़े किसी को हो सकता है थोड़ा मोड़ा वीक किडनीज हो जो उसको पता करने का तरीका ना हो, वो बैडली अफेक्ट हो सकती हैं। Understood. तो इट मे बी अ गुड आइडिया कि थोड़े बहुत चेकअप वगैरह कर लेंगे, थिंग्स आर हंकी डोरी एंड देन आप लें, सुपरविजन में लें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। और कुछ लोग क्या करें, साथ में कुछ इंजेक्शन और टैबलेट्स भी लेते हैं, एनाबॉलिक्स ले लेते हाँ हैं जी, मसल्स को बढ़ाने के लिए, muscles build सलमान करने के खान की लिए। तरह, यू नो स्टफ लाइक दैट। Yes. डायूरेटिक्स ले लेते हैं कि बॉडी में पानी कम हो जाए, वेट कम हो जाए, जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह करते हैं ओलंपिक्स जी। वगैरह में ये। और फिर प्रोटीन ले लेते हैं तो और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो जिम नेफ्रोपैथी करती है। Okay. So one point that you mentioned in between is hydration. Yeah. So how important hydration is for kidney health?
आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी किडनी ठीक रखनी है तो रफली हम कहते हैं कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ओके। विच कम्स अराउंड 2 लीटर्स। ये कोई रिटन ऑन स्टोन नहीं है, दिस विल डिपेंड अपॉन योर डेली एक्टिविटीज़, योर एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट। अब हम लोग एसी रूम में बैठे हैं तो प्रॉब्ली अवर वाटर इनटेक विल बी लेस, बट इफ़ यू गो आउट वर्किंग इन दी फील्ड्स मार्केट और वट एवर, लेबरर है, उसको 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो स्वेट करता है, हैवी कैटाबॉलिक वर्क करता है। और इन पासिंग ये देखा गया है कि जो बहुत सारे फील्ड में लोग काम करते हैं, किसान हैं, डेली वर्कर्स हैं, इन यंग लोगों में बहुत ज़्यादा किडनी फेलियर होता है। उसका ओके। वन ऑफ द रीजंस ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग डिहाइड्रेट होते रहते हैं बार बार। सो Okay. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 8 ग्लास पानी पीजिए किडनी बचाने के लिए। एंड सर, किडनी स्टोन्स के लिए बोलते हैं कि जब किडनी स्टोन्स हो जाते हैं तब भी आपको पानी ज़्यादा लेना चाहिए, और आजकल ये भी प्रोपोगेट किया जाता है कि बियर लेनी चाहिए। सो हाउ रेलेवेंट इज़ दैट? बियर लेने के लिए किडनी डिजीज़ का बहाना मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको किडनी स्टोन बचाना है तो आपने 1 ग्लास बियर पी, 200 ml जाएगा, बट यू नीड टू टेक मच मोर। इसमें देर इज़ नो साइंटिफिक वैलिडेशन कि बियर पीने से स्टोन कम होता है। ये किसी बियर ड्रिंकर ने अच्छी मिथ फैलाई है, एंड इट हैज़ कंटिन्यूड टू लास्ट आउट लास्ट हिम। यस। It really doesn't help in stone formation. That's a fact. If you want to enjoy your beer, you could jolly well do it. बट अगर स्टोन बचाना है तो गुड ओल्ड वाटर पीजिए अच्छे अमाउंट में, और सॉल्ट कम खाइए। सॉल्ट ज़्यादा खाने से स्टोन बनता है। और लेट मी टेल यू इन पासिंग, यस सर। जो मोटे लोग होते हैं, जिनकी बॉडी वेट ज़्यादा होता है, उनमें भी स्टोन ज़्यादा होते हैं। तो स्टोन से बचने के लिए सॉल्ट कम, पानी ज़्यादा, वेट कम, स्टफ लाइक दैट, रेगुलर एक्टिविटी विल हेल्प यू अवे फ्रॉम स्टोन्स। ओके, ऑलराइट। एंड सर, हम किडनी के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट डायलिसिस। यूजुअली जब हम डायलिसिस सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। डायलिसिस सबसे पहले तो किस कंडीशन में चाहिए हमें, एंड दूसरी चीज़, इज़ इट लाइफ लॉन्ग थिंग? अगर एक बार डायलिसिस पे चढ़ गए, जो हम लेमैन टर्म्स में बात करते हैं, तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस हमें करवाना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट मिथ्स Yeah. रिगार्डिंग द डायलिसिस। Yeah, I think it is from my perspective because I am a tertiary nephrologist. हम लोग डायलिसिस के बारे में बार बार बात आती है, तो यहाँ मैं 3-4 बात शायद बताना चाहूँगा। एक तो यह है कि डायलिसिस अगर स्टार्ट हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है 100% की लाइफ लॉन्ग चले। ठीक है। उसको आप ऐसे समझो कि किडनी फेलियर एक्यूट हो सकता है, हाँ जी। क्रॉनिक हो सकता है, हाँ जी। और एक थर्ड कैटेगरी है एक्यूट ऑन क्रॉनिक। ओके। तो एक्यूट रीनल फेलियर, जैसे ये जिमिंग हुई, कोई एक्यूट रीनल फेलियर हुई, मसल इंजरी हुई, या हाँ जी। गैस्ट्रोएंटराइटिस हुई, जो बच्चों में बहुत कॉमन है। इतना डायरिया डिसेंट्री हो गई, बॉडी का पानी खत्म हो गया, किडनी फेल हो गई। ऐसी सिचुएशंस में डायलिसिस से उसकी जान बचती है, और विद इन डेज एंड वीक्स वो किडनी इंप्रूव कर जाती है। तो Okay. एक्यूट रीनल फेलियर में किडनीज इंप्रूव हो जाएंगी, डायलिसिस रुक जाएगी। कोई पॉइजनिंग वगैरह में हम डायलिसिस देते हैं, टॉक्सिन्स हटाने के लिए डायलिसिस देते हैं, तो वो भी रिकवर हो जाएगा। Got it. फिर एक कैटेगरी है एक्यूट ऑन क्रॉनिक। किसी की किडनीज वीक थी, उसको पता है, क्रिएटिन जी। 3-4 चल रहा था, हाँ जी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, हाँ जी। सडनली उसको बहुत डायरिया हो गया, या बहुत तेज इन्फेक्शन हो गया, फीवर आ गया, अब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ी, पेन किलर देना पड़ा, तो उसमें किडनी बैठ जाएगी। अगेन हम उसको अगर डायलिटिक सपोर्ट देंगे हाँ जी। तो वो रिकवर कर जाएगी। ओके। यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ डायलिसिस है क्या। Exactly. डायलिसिस हुआ नहीं है। डायलिसिस इज अ आर्टिफिशियल वे ऑफ डूइंग द जॉब ऑफ योर किडनीज। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो अगर किसी की किडनीज काम नहीं कर रही, बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, एसिड्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो डायलिसिस उसको Remove निकाल कर देगा, देती वो है। बंदा हाँ जिंदा जी, रहेगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि हमारी किडनी 7 दिन 24 घंटे काम करती है, 144 आवर्स अ वीक। Yes. 1 मिनट भी नहीं रुकती वो। जस्ट लाइक हार्ट किडनी बराबर काम करते हैं। तो वो जो काम 144 घंटों में, 148 घंटों में कर रही है, आप 4 घंटे में कर रहे हैं, तो थोड़ा ही तो होगा। आपने आज डायलिसिस करा के वो टॉक्सिन निकलवा हाँ लिए, जी। अब मेटाबॉलिज्म से वो दोबारा बॉडी में इकट्ठे होंगे, हाँ जी। तो आपको फिर निकलवाना निकलवाने पड़ेगा। पड़ेंगे। तो हफ्ते में 2 डायलिसिस करानी पड़ेंगी। लोग उससे घबराते हैं, कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी, और आपका लाइफस्टाइल डिफीट करता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना चाहिए, थोड़ा ब्लंट है आंसर बट ट्रू है, इट विल बी आइदर डायलिसिस और डेथ।
तो मरना तो कोई नहीं चाहता है ना, तो इसलिए डायलिसिस that's- वर्ड खराब नहीं है, खराब है डेथ या वो इरिवर्सिबल किडनी फेलियर। अगर आप मरना नहीं चाहते हो, किडनी फेलियर क्रॉनिक इरिवर्सिबल है, तब डायलिसिस आपको ट्वाइस ए वीक करनी पड़ेगी, ट्रीटेड एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ एलाई, एज अ फ्रेंड, एंड यू विल लिव वेल, डायलिसिस पेशेंट विल लिव वेल। और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मिथ है Yes, कि डायलिसिस अगर स्टार्ट हो भी जाती है, यू शुड कीप ऑन लुकिंग फॉर रिवर्सिबल कॉजेस। जैसे मैंने कहा एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया वगैरह हाँ जी। हुआ, इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, वो ठीक हो गया तो आप अपना रूटीन चेकअप कराते रहिए, डायलिसिस से पहले का क्रिएटिनिन। अगर वो ज़्यादा बढ़ना नहीं हुआ उसका, इसका मतलब आपकी किडनी काम करने लगी पीछे से, वो ठीक है। निकाल रही है क्रिएटिन को, तो ठीक देन है। यू कैन स्टॉप डायलिसिस। You can stop dialysis. Yes, you can stop dialysis. Okay. Acute में you can stop, poisoning में you can stop, acute and chronic में you can stop. And even in irreversible chronic renal failure, you Yes. should not be afraid, it's your friend. As I said, dialysis or death, what will you pick? Dialysis. Okay. And so, we were also discussing previously about kidney transplants. Yeah. And you mentioned certain statistics when it comes to transplants. It's either 80% women being the Yeah. donors to, usually it's the husbands or the brothers or the male figures in the family. So how does kidney transplant, because there are again a lot of myths and people get worried that, okay, if I give my kidney or I donate it to a friend, I might not be able to live a long, healthy life. So can we talk about the kidney transplant and the myths around it? I totally agree with you that most of the transplant centers in our country, if you look at their statistics, अगर आप उनका डेटा देखोगे हाँ जी। तो 80% बेनिफिशरीज मेल्स हैं, हाँ जी। हस्बैंड्स हैं, फादर्स हैं, ब्रदर्स ब्रदर्स हैं। और 80% डोनर्स फीमेल्स हैं, वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं। तो एक तो ये बात है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा इंडिया में टोटल ट्रांसप्लांट लाइव रिलेटेड डोनेशन पे है। लाइव रिलेटेड डोनेशन मतलब हम जिंदा आदमी से जिसकी दोनों हाँ किडनी जी। हेल्दी हैं, बेहोश करके किडनी निकालते हैं हाँ जी। और पेशेंट में लगा देते हैं। वेस्ट में, डेवलप्ड नेशन में, यूएसए, फ्रांस, स्पेन एक्सेट्रा में कैडेवर डोनेटेड प्रोग्राम है। इसका कैडेवर मतलब ये हुआ कि कोई आदमी ब्रेन डेड हो जाए, जिसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है रोड साइड एक्सीडेंट, स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, यंग आदमी घर से चला, स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, उसकी ब्रेन इंजरी हो गई और ब्रेन डेड हो गया, लेकिन अभी वो मरा नहीं। डेथ हम Organs मानते जिंदा हैं है। हार्ट को रुकने हाँ से, जी। हार्ट उसका चल रहा चल रहा है, है, पंप वो बड़े कर रहा है। अस्पताल में आया, वेंटिलेटर में आ गया, अब उसको एसेस किया गया, अगर उसका ब्रेन ठीक है, रिकवरी की उम्मीद है, तो पूरा जोर लगाना चाहिए उस यंग आदमी को बचाने के लिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर ये आया कि इसका ब्रेन डेड हो गया है, तो ब्रेन डेड का मतलब यू आर लाइक अ लिविंग कॉलीफ्लावर। जैसे गोभी का फूल जिंदा होता है, लगा हुआ है अगर ब्रांच पे, या कोई फल है, तो आप बस उतने ही हो, कभी भी यू विल नेवर बिकम योर सेल्फ अगेन, कभी होश नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वंस द ब्रेन डाइज, तो जो ब्रेन के हॉर्मोन्स लिवर, लंग, हार्ट सबको चलाते हैं वो रुक जाएंगे। हाँ जी। तो 2 दिन में आपका हार्ट और लंग, लिवर ये सब रुक जाएगा, और जैसे ही हार्ट रुका, डेथ आ गई, तो जाके आपको बरी कर दिया जाएगा या क्रीमेट कर दिया जाएगा। तो ये जो 2 दिन की विंडो है, हार्ट चल रहा है लेकिन यू आर डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, इसमें फॉरेन कंट्रीज में वो सारे ऑर्गन निकाल लेते हैं और एक आदमी 8 लाइफ बचा सकता है। देखिए कैसे, 1 लिवर, 2 किडनी, 3 पैनक्रियास, लंग्स, हार्ट, इस तरीके से 8 लोगों की एक आदमी जान बचा सकता है। एक आदमी 8 फैमिलीज को सस्टेन कर सकता है, 8 लोगों में वो जिंदा रह सकता है मरने के बाद भी। लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ इन 8 फॉर्म्स, डिफरेंट बॉडीज। यस। तो लेकिन हमारे ये मिथ है कि हार्ट चल रहा है तो हम नहीं देंगे, और जब हार्ट रुक गया सब रुक गया। सब रुक गया। तो उस गोल्डन विंडो को वो लोग एडवांटेज लेते हैं, तो उनको लाइफ ऑर्गन नहीं लेने पड़ते, उसको कहते हैं कैडेवर ऑर्गन्स। मरने से पहले जो 8 ऑर्गन निकाले, उनके सारे प्रोग्राम उस पर चलते हैं। लिविंग आदमी मेम नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, इससे एक और बहुत बड़ी कुरीति आती है, आपने सुना हो किडनी बेची खरीदी। हाँ जी। ये बहुत बड़ा ऑर्गन प्रोस्टिट्यूशन है। हाँ जी। गरीब आदमी हो, भूखा मर रहा है, कर्जा है, बहन की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तो 5-10 लाख में वो किडनी बेचना चाहता है अपनी।
यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। टाउट्स बीच में 25 लाख 50 लाख बना लेते हैं, डॉक्टर जो ये गलत काम करते हैं वो पैसे बना लेते हैं और रईस आदमी के लगा देते हैं और वो गरीब आदमी को 4-5 लाख दे के विदा करते हैं और उसका कोई भला नहीं होता। साल भर बाद में जहाँ वो था उतनी गरीबी पे फिर पहुँच जाता है, एल्बीट अ वीकर पर्सन, अधमरा गरीब हो जाता है वो। तो ये स्टार्ट हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं अनरिलेटेड, ये क्राइम है, ये अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज है। ये बहुत थ्राइव करता है, अंडर द कवर लोग करते रहते हैं इधर उधर। तो But ये it's सारी amazing प्रॉब्लम that है। you have thrown light on that topic because That's- it's yeah, this is something true. that has to be Yeah, spoken yeah, about. this is true. तो इसका सोल्यूशन जो है वो कैडावर ट्रांसप्लांट ही है। Till such time science throws up new opportunities, new things. Okay. And since we are talking about opportunities and new things, let's talk about what other countries have been doing when it comes to taking out kidneys out of a pig and testing it on Yeah, human so bodies. you read that. Yeah, I'm very impressed with your work. So what happens is it's called xenotransplant. Okay. Xeno is the animal. So now last year in America, especially in I think University of Wisconsin and Baltimore, it was I think Baltimore. Robert Montgomery is a surgeon and ironically himself was a heart recipient. He's Okay. a surgeon. So what they did was they took out kidneys from pig and bioengineered it. Okay. What it means is supposing they have identified a person कि he needs a kidney transplant, तो उसका blood लेके उसकी gene map कर लिया हाँ जी. and those wanted gene they will transfer into a pig zygote embryo. Okay. जब वो पिग अभी पूरा फॉर्म पूरा हुआ form माँ के नहीं हुआ, पेट छोटा है, में जैसा, हाँ जी. and they will take out those DNA which are inimical or harmful to that patient और फिर उस पिग को रेस किया स्टेराइल कंडीशंस में। Okay. जब वो पिग बड़ा हो गया तो उसकी किडनी लगा के उन्होंने आदमी में लगा दी and for weeks altogether in some cases for 2 months that those kidneys worked. It has never ever happened before. It's called xenotransplant. Lot of work is being happening on these things and I for one I am very optimistic कि आने वाले टाइम में हमें अपने रिलेटिव डोनर से या ऑर्गन्स खरीदने की और इस सब की जो चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी। And it is going to work as good as a kidney Human transplant kidney, does. yes, yes. That is the hope and I for one feel कि 2-3-4 साल में ये hope will become a solid clinical decision and clinical treatment. Okay. And so after a kidney transplant, how is the lifespan of a human being affected? Of the donor and of the recipient as well. See, that's again very, very relevant. After transplant, donor normally does not need to take any medicines. He may need painkillers for a 1 week or all, like any operation. Okay. After that, he remains all right. But still, we recommend donors कि once in 6 months, and we recommend for everybody, even Okay. people like you. Okay. Once in 6 months, he should go for his blood pressure. Simple test: blood sugar, creatine, and blood pressure. ये Okay. 4-5 चीज़ें वो करा ले तो उससे उसके हार्ट का, किडनीज का, बाकी बॉडी का भी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। हाँ जी. तो वो उसको कराते रहना चाहिए बिकॉज नाउ ही हैज ओनली वन किडनी। सेकेंड थिंग वी टेल देम इज नॉट टू गेन वेट, क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क यू पुट ऑन योर किडनीज एंड योर हार्ट। जितना भी वेट ज़्यादा होगा उतना ही आपके हार्ट और किडनीज को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वेट ना बढ़ाए, बीपी कंट्रोल में रखे, शुगर ना बनने दे। हाँ जी. Diabetes is the biggest enemy of kidneys. Diabetes and blood pressure I call राहु केतु on the kidney. और एक बात है, डायबिटीज और किडनी जब अकेले ब्लड प्रेशर आता है किडनी पे तो हाँ जी. लेटर से डायबिटीज एक डैमेज करती है हाँ. और ब्लड प्रेशर एक डैमेज करता है। ये जब दोनों आ जाते हैं ना तो एक और एक, ये दो नहीं होते, ये और एक 11 हो जाते हैं। तो ये किडनी को अच्छे से मारते हैं। तो उसको ये सब चीज़ों का चेकअप करे और ट्रांसप्लांट जो पेशेंट है हाँ वो जी. भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। इन एडिशन ट्रांसप्लांट पेशेंट को कभी अपनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए। So वो लाइफ लॉन्ग रहती वो है? लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, अच्छा. उनकी डोज कम हो सकती है। देखो हमारी जो ये बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, हाँ जी. बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करता है ना। हाँ जी. जैसे आपकी आंख में छोटा सा कुछ पड़ जाए या कुछ अटक जाए तो जब तक वो निकलेगा नहीं आप चैन से नहीं बैठ सकते। बिल्कुल. दांत में ही कुछ जरा सा फंस जाए आप चैन हाँ, से नहीं हाँ बैठोगे। जी, तो बिल्कुल. इतनी बड़ी किडनी लगा दी हमने तो कैसे बॉडी चैन से बैठेगी। इम्यून बिल्कुल. सिस्टम उस किडनी के पीछे पड़ जाता है और मार के दम लेता है। अब इम्यून सिस्टम पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये अकल नहीं है कि इस किडनी को जो मार रहा है वो उसका फ्रेंड है, एलाई है, ऑल्दो फॉरेनर है लेकिन उसका फ्रेंड है।
तो इम्यून सिस्टम को डांट डपट के रखना, दबा के रखना पड़ता है। इट्स अ ट्रूएंट। उसके लिए वो मेडिसिन देनी होती हैं जो इम्यून सिस्टम को डाउनग्रेड करती हैं, सप्रेस करती हैं, ताकि किडनी चल सके और लाइफ चल सके। तो इसलिए ट्रांसप्लांट मेडिसिन बराबर लेनी होती है। अब इसकी एक कॉरलरी ये भी होती है कि जब आप इम्यून सिस्टम को कम कर रहे हो, हाँ जी, तो इम्यून सिस्टम तो आपका सिपाही है बॉडी की, आर्मी है आपकी बॉडी की, आपने अपनी डिफेंसेस ही कम कर दिए, हाँ जी, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा आप बताओ? prone to more diseases or you can Absolutely easily infections. catch infections. एब्सोल्युटली, इंडिया तो ऑलरेडी हाँ इन्फेक्शन जी, प्रोन करनी, सबसे ज़्यादा टीबी हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे यहाँ है। यू लुक एट दिल्ली आउटसाइड एटमॉस्फेयर, कितने पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूशन कितना है, तो वो पर्सन विल बी वेरी वेरी प्रोन टू गेट दोज इन्फेक्शंस। okay, तो उसको वो प्रिकॉशन लेने चाहिए कि बहुत क्राउडेड प्लेसेस में ना जाए, काम अपना सब करे। वी रिहेबिलिटेट, वी इनकरेज हिम टू टेक पार्ट इन रेगुलर एक्टिविटीज, regular work, regular they can do exercise. physical activity Absolutely, as well. absolutely. Okay, But simple precautions कि जहाँ बहुत crowded places हैं, धूल धक्कड़ है, या किसी को बहुत जुकाम नज़ला तेज जो उसके पास ना जाए उतने टाइम तक। But that's all. Take his medicines regularly, keep his sugars, blood pressure under control, and do normal lifestyle. And does AQI also affect the kidney health? Because Delhi has seen some of the worst AQI levels in the past few months. Honestly telling you, I don't have data on it. Okay. But I have read remotely that it does affect your kidneys. But अगर हम पे डेटा ना भी हो, अगर हम लॉजिकली सोचें, ये क्या हो, ये आपके लंग्स को तो मार ही रहा है, हाँ जी, आपके but हार्ट की especially आर्टरीज for a को। kidney transplant patient, हाँ, उसको because तो इन्फेक्शन प्रोन है, उसको तो नुकसान करेगा, इन्फेक्शन होगा। लेकिन हम और आपको भी अगर ज़्यादा एक्सपोजर मिले, अगर हमारे लंग्स और हार्ट वीक हो जी। रहे हैं, किडनी को कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा। दे ऑल कनेक्टेड, बॉडी में सारे सर्किट्स कनेक्टेड हैं, तो अगर एक सर्किट डाउन हो रहा है तो इट विल अफेक्ट द अदर। बट पर से मेरे को ऐसा भी एविडेंस याद नहीं आ रहा। आई एम श्योर इट इज़ इन द लिटरेचर कि ये पॉल्यूशन और ये सब मारते हैं। और कुछ चीज़ें इन पासिंग मैं बता रहा हूँ। यू आर ए यंग वुमन, फेयर क्रीम के बारे में आपका क्या आइडिया है? fair cream, good, like the हाँ, cream for the वो क्या फेयर एंड लवली, क्या ये fair सब and आते lovely, हैं? हाँ जी, हाँ व्हाट डू जी, यू हाँ फील जी. अबाउट इट? They are not good for your skin. That's Why? because they contain certain toxins Yeah, that. absolutely. I'm very happy you know it. What happens is the readers should, especially young women, should know in India, lot of fairness creams contain mercury. बिकॉज जब मर्करी जाती है वो स्किन को लाइट कर देती है, वो डार्क पिगमेंट्स को स्प्रेड आउट कर देती है, एंड मर्करी कैन किल योर किडनीज। बॉडी में खट्टी होती रहती है। प्लीज सेंड दिस मैसेज अक्रॉस टू यंग गर्ल्स, यंग वुमेन। वो फेयर और लवली के चक्कर में डार्क इज गुड, फेयर स्किन बाय फेयर क्रीम्स आर बैड। मर्करी इंटॉक्सिकेशन कर देगा। इट जस्ट इन पासिंग मेरे को याद आया फॉरेन टॉक्सिन से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। That has to be spread amongst youngsters, especially young girls, because they have an inclination towards getting a fair skin. इंडिया में है वो फेयर स्किन, there are certain बहुत ज़्यादा है। जी, लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमारी सोसाइटी को गोरे रंग का बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। I mean, till date in matrimonials, where we read the ads, it's required fair girl, वही तो वो फिर वो मक्खी क्रीम educated लगाती fair है। girl. So तो एजुकेट करो, लड़कियों को फेयर करने की कोशिश मत करिए। I would say that it's very important. yes, definitely. So one thing I would like to talk about is the international patients. You are the vice chairman of the nephrology department in BLK, and we have seen there is a tremendous, travel of international patients from countries like Africa, Southeast Asian countries for transplants. So how can we, get more patients and increase this kind of sector? Yes, at BLK where I work, we have a lot of medical tourism from international. We are mostly getting patients from Middle East and Africa. Yes. And let me tell you that India is a very good destination. You should promote it from all India. The reason the benefits are multifold. The foreign exchange comes to our country, business comes to our country, and we do ethical business at a lesser cost. Lot of patients go from Middle East and even Central Europe to Thailand, which is a smaller country, and I am sure our doctors, our professionals are no less than anybody, perhaps better. Yes. And we can give that care at a less cost and more effectively. So this is a good way to do good business, which is good for society, good for the country. More jobs are created, and nurses, paramedical technicians, doctors,
more hospitals and more foreign exchange, and our good name goes out to those other countries. And to increase this business, perhaps we should have real time and online activities connected with doctors and medical support systems of those countries, especially third world countries like Africa, Middle East, maybe even South Asia and other places where the resources are much less, and they can come and get benefit from our services. But we have also seen that Indian doctors have great credibility Yeah, absolutely. There's no when doubt it about comes to, and they're much more approachable as Yeah. compared to other countries, especially like America and Canada, where even you have to get, one wisdom tooth out, you have to take an appointment and wait for days Yeah, and days. fortune goes out with that And too. Yes, of course, the fortune goes out with it. But here But it's more one third economical, of your feasible. American Canadians are Indian doctors. You know that? One third of your American doctors are of Indian origin. यस 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 डेफिनेटली दे कम एंड दे जो Yeah. जिनको हम बोलते हैं क्रीम ले जाते हैं यहाँ की Yeah, true. दे डू दैट दे वी हैव हर्ड दैट एंड ऑल द टॉप लीडिंग सर्जन्स ओवर देयर मोस्ट ऑफ देम दे आर इंडियन Yeah. origins. So yes, I think we have great credibility of doctors out there, Yeah. and thanks to the rigorous hard work that you do to reach where you Thank are. you. So that's that. And so, lastly, before closing, I want to talk about one myth that you would like to, you have, bust a lot of myths in the entire podcast, but one myth or one advice that you have for the youngsters out there listening to us right now. Yeah, if I have to say in one sentence, one myth, just one myth is eat less and eat less sodium. But if I can expand a little bit with your Yes. permission, Yes, my definitely, tagline is definitely. avoid 5S. Oh, okay. Avoid 5S. First S is salt, second S is sugar. Excess salt, blood pressure. S is sugar, obesity and diabetes. Smoke. Smoke is zero. I will revise. If one thing we have to do is give up smoking. Give up It's not smoking. terrible for heart, lung and kidneys. Fourth is stress. एक कहावत है हिंदी में, चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है. Salt, sugar, stress, smoke, and finally, if I have to say, sedentary lifestyles. देखो आजकल क्या होता है, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं और ये IIT वगैरह के पढ़े बच्चे हैं, खूब अच्छा काम करते हैं, घर पे आए सोफे में टीवी खोली और खा क्या रहे हैं, चिप्स, वेफर्स. So they are couch potatoes. Yes. And very soon, within 4-5 years, they will gain weight, they will have a pot belly and all. So sedentary lifestyle is bad. Avoid sedentary lifestyle. Everybody should do 10,000 steps every day. Buy the watch, buy the mobile. Everybody should do 10,000 steps a day, or 40-55 minutes of regular isometric and cardio activities. At least 5 times a week is a must Okay. to remain healthy. That's absolute. 8 glasses of water, less salt, good physical activity, watch your weight, and not only your kidneys, your heart will remain robust. Okay. But you mentioned smoking. Yeah. But now there are alternates to smoking. There are very young children who are into vaping and hookahs and all of that, and they Terrible. justify it that it's less No, harmful no, as compared no, to no. smoking. No, no. So for those hookah lovers, I would like you to say Terrible, terrible. Or everything is bad. The sin or the wrong thing, even if it is little bit less, does not make it right. Supposing cigarette smoking is bad on a scale of 10, then vaping is bad on a scale of 8, 9. So it's no good. It's totally bad. Absolutely. totally bad. Stay away from it. If one thing one has to stay away, young people have to stay away smoking. Got it. It's zero. Absolutely. It does nobody no good. Thank you so much, sir, for making time Yeah. for us. I know you have a very busy No, schedule ahead. I was happy to come here. But and it was spend an time with you. absolute pleasure Thank you. having you here, and you have given us some great insights Thanks. on kidney and myths around kidney health. Thank you so much, and we would love to have you again here. Yeah, sure. And before I go, let me give you some optimistic news also. Yes, sir. Now, what's happening is recently in January, a major American journal published about stem cells. They have taken out cells from the patient, rejuvenated them, and put them back into the patient's kidneys. And the disease of the patient got modified to the point that for 4-5 years more, they could do better without dialysis. So I feel that in future stem cells will come, which we call kidney regenerative therapies.
renal regenerative therapies, and I am also optimistic about synthetic kidneys making rounds. Just like your mobiles, transistors, or whatever, these So, synthetic can you kidneys. elaborate a bit on synthetic kidneys? Actually, I am myself not very clear. They are making scaffoldings of the kidney structure. Kidney structure is very, very complicated, but they are working on it. So probably some synthetic module will be made, synthetic modules with very high class gadgetry, AI controls and all, and they will implant it in the body, and that will clean the body from inside like kidney. Some small work is getting at the bench in USA even now, and very small dialysis machines have come up like the size of your bag, like school bag. Okay. Yeah, so you carry that school bag with you and you do everything. You work, you do whatever you need to do, and they're doing So dialysis it's from much more behind. feasible, like they Yeah, are it doing goes. the. Oh, yeah, yeah. Nobody Okay, knows. nobody has to know. You're going for dialysis. So these are the things which are on the anvil. So let's Oh. remain optimistic as far as the kidney disease are. Okay. Thank you so much, sir. Thank For you for thank you having for me. having.